Hello and very good evening to all the students. So students, let's begin our English dictation, and today we are going to write a paragraph about storm. Okay, so please bring your copies, pencil, pen and eraser, and we will start our English dictation. So let's start our English dictation. So write down storm is a strong wind. Storm is a strong wind and it contains comma. Storm is a strong wind and it contains. Storm is a strong wind and it contains comma, dust particles and it contains comma, dust particles comma, snow and rain, snow and rain, full stop. Therefore comma, comma, a storm may be categorized as. Therefore comma, a storm may be categorized as dust storm, comma, snowstorm, dust storm, comma, snowstorm and rainstorm, full stop. Therefore comma, a storm may be categorized as dust storm, comma, snowstorm and rainstorm, full stop. This type of wind, yes, write it down. This type of wind can have a circular motion also, full stop. This type of wind can have a circular motion also, full stop. Yes, write it down. This type of wind can have a circular motion also, full stop. Yes, write down. This type of wind can have a circular motion also, full stop. Cyclone is the perfect example of circular storm, full stop. Cyclone is the perfect example of circular storm, full stop. This kind of wind may cause damages to. This kind of wind, yes, write it down. This kind of wind may cause damages to trees, comma, houses and damages to trees, comma, houses and other things, full stop. Now we will repeat our paragraph. So please tally your dictation. Storm is a strong wind and it contains comma, dust particles, comma, snow and rain, full stop. Therefore comma, a storm may be categorized as dust storm, comma, snowstorm and rainstorm, full stop. This type of wind can have a circular motion also, full stop. Cyclone is the perfect example of circular storm, full stop.
This kind of wind may cause damages to trees, houses and other things, full stop. Now here we have finished our English dictation and now we will proceed to write Hindi dictations. Okay, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना हिंदी का डिक्टेशन लिखेंगे और आज का हिंदी डिक्टेशन थोड़ा सा कठिन होने वाला है, यानी टफ होने वाला है। तो ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी से हिंदी की अपनी कॉपी लेके आ जाइए जिससे कि हम लोग हिंदी का डिक्टेशन स्टार्ट करें। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे। लिखिए, हमारा अमर, हमारा अमर, हमारा अमर साहित्य दुनिया में, हमारा अमर साहित्य दुनिया में हमें, हमारा अमर साहित्य दुनिया में हमें एक अलग पहचान देता है। पूर्ण विराम। हमारा अमर साहित्य, हमारा अमर साहित्य दुनिया में हमें एक अलग पहचान देता है। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, चारों वेद, चारों वेद डैश, चारों वेद डैश, ऋग्वेद कॉमा, चारों वेद डैश, ऋग्वेद कॉमा, यजुर्वेद कॉमा, ऋग्वेद कॉमा, यजुर्वेद कॉमा, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद कॉमा, सामवेद और अथर्ववेद तथा 18 पुराण, तथा 18 पुराण हमारी, फिर से रिपीट करें। ओके, एक बार टैली करें। चारों वेद डैश, ऋग्वेद कॉमा, यजुर्वेद कॉमा, सामवेद और अथर्ववेद तथा 18 पुराण हमारी उन्नत, हमारी उन्नत भारतीय संस्कृति के, थोड़ा सा हार्ड रहेगा आज का, तो आप लोग कोशिश करें इसे लिखें। ठीक है, हमारी उन्नत भारतीय संस्कृति के, हमारी उन्नत भारतीय संस्कृति के परिचायक हैं। पूर्ण विराम। भारतीय संस्कृति के परिचायक हैं। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, भगवत गीता, भगवत गीता महर्षि, भगवत गीता महर्षि, और आज के डिक्टेशन में शायद आप लोगों की काफ़ी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो आपकी जो भी मिस्टेक्स हो उन्हें एक बार आप लोग टैली करके करेक्ट करें और एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स जरूर लिखें, क्योंकि ये आपके ही काम आने वाला है। ठीक है, लिखिए, भगवत गीता महर्षि वेद व्यास, भगवत गीता महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित, भगवत गीता महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का एक अंग है। महाभारत का एक अंग है, कॉमा। और आप लोगों ने महाभारत सीरियल भी आता था टीवी पे, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितना अच्छा महाभारत लिखा गया है। महाभारत का एक अंग है, कॉमा, जिसमें भगवान, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा, यस राइट इट डाउन, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को,
हाँ लिखिए, अर्जुन को कर्म का उपदेश दिया गया है। उपदेश दिया गया है, पूर्ण विराम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म का उपदेश दिया गया है, पूर्ण विराम। और यहाँ पर हमारा हिंदी का भी डिक्टेशन फिनिश होता है। अब हम लोग एक बार हिंदी के डिक्टेशन को टैली करेंगे, ठीक है। हमारा अमर साहित्य दुनिया में हमें एक अलग पहचान देता है, पूर्ण विराम। चारों वेद डैश ऋग्वेद कॉमा यजुर्वेद कॉमा सामवेद और अथर्ववेद तथा 18 पुराण हमारी उन्नत भारतीय संस्कृति के परिचायक हैं, पूर्ण विराम। भगवद गीता महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का एक अंग है, कॉमा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म का उपदेश दिया गया है, पूर्ण विराम। तो यहाँ पर अब हमारा हिंदी का भी डिक्टेशन फिनिश होता है और हमने जो भी बोला है वो आपको हमेशा की तरह वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग अपने डिक्टेशन को टैली करें, ठीक है। और जो भी मिस्टेक्स हो एटलीस्ट 5 टाइम्स जरूर लिखें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।